Hello everybody, this is Alok Kumar Sharma, your assistant teacher from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Welcome back to my online class once again. My dear students, in previous video we have already discussed about the location of eclipse on a globe, right? And in this video, the topics which are written here, movements of the earth. In this video we will discuss about the movement of earth. There are two movements, a rotation and a revolution. Dear students, first of all I would like to remind you that earlier I told you, and all the planets in our solar system including the earth rotate on its axis. सभी planets rotate करते हैं, घूमते हैं और मूवमेंट भी करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं. So you can say that the sun is the center of our solar system and all these 8 planets moves around the sun. Dear students, the earth is a unique planet and here we will discuss about the movement of the earth. Right? I would like to tell you, dear students, first there are two movements, rotation and revolution. One by one we will discuss about these two movements. For that, rotation. What that is? Rotation. The spinning movement of the earth about its axis is called rotation. Right? जब पृथ्वी अपने एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उस प्रक्रिया को हम रोटेशन कहते हैं. I would like to give an example here in front of you. Look at this. You know very well about it. This is model of Earth, right? And with the help of model and the globe, we can understand the feature of our Earth. So through this globe, I would like to tell you the two movements of Earth: revolution, rotation, and revolution. Look at this. This is, suppose that this is the earth and here we are discussing about rotation and the spinning movement of earth about its axis is called rotation. Look at this, ये movement है earth यानी घूमती है, right? अब आप जानते हैं कि you might have seen the sun rising in the east and setting in the west every day. Do you know why? Because the earth rotates west to east. That's why reason the sun rising in the east and setting in the west. Dear students, on earlier I told you the spinning movement it means the earth movement of the earth about its axis. अब ये अपने एक्सिस पे घूमती है, यानी जब ये अपने एक्सिस पे घूमेगी इस तरीके से अपने अक्ष पे घूमती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. लुक एट दिस. आई विल टेक ए सर्किल. दिस इज, यू नो वेरी वेल अबाउट इट. दिस इज सन and it is the center of our solar system. अब जब ये पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस पे, यानी the earth rotates on its axis, I mean the movement of earth. अब ये घूमती है, जब ये घूमेगी इसकी जो फेज, समझिए ये पृथ्वी, अब ये जो फेज सामने पड़ा, ये क्या होता है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रोटेशन, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन. तो द इफेक्ट ऑफ रोटेशन हियर व्हेन, जब सूर्य के सामने जो पार्ट पड़ेगा वहां दिन होगा. दैट मीन्स व्हाइल रोटेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ फेसेस द सन and that means the part of earth that faces the sun experience day. जो बात सूर्य के सामने पड़ेगा वहां दिन हो जाएगा.
ये सूर्य के बाद ये भाग सूर्य के सामने पड़ गया, रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो जो भाग पड़ा यहाँ दिन है। अब ये पार्ट जो बचा यहाँ क्या होगा, तो वाई द अदर साइड फेसेस अवे फ्रॉम द सन, जो दूर है, यानी अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ नहीं रही है, तो इट एक्सपीरियंस नाइट, यहाँ पे रात है। एंड माय डियर स्टूडेंट रिमेंबर इट, the earth complete one rotation in 24 hours। जो अर्थ है ना हमारी, जो पृथ्वी है ना, ये अपने एक्सिस अपने अक्ष पे जो घूमने की प्रक्रिया, इसमें 24 घंटे लग जाते हैं उसमें। 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है ये पृथ्वी, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब ये पृथ्वी मैंने आपको पहले बताया अपने एक्सिस पे घूमती रहती, जब ये घूम रही है तो जो भाग पड़ा तो वहां पे दिन हो गया, और जो भाग पे नहीं पड़ा वो रात हो गई। फिर ये घूमेगी, अब अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगी, तो फिर ये भाग क्या होगा, इसके सूर्य के सामने आ जाएगा। अब ये 12 घंटे बाद ये चीज हो गया, यहाँ दिन हो गया, अब यहाँ रात हो गई, यानी अब ऐसे घूमते घूमते यहाँ दिन हो गया और यहाँ पे रात हो गई। यानी कि टेक्स 24 आवर to complete one rotation, and rotation का day and night। Dear students, कभी भी आप जब यहाँ पे इंडिया में रात हो तो अमेरिका में फोन मिला दें, कोई रहता हो आपका तो उसको मिलाना, तो देखना वहाँ पे दिन है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ रोटेशन। क्योंकि अगर भारत है तो मान लीजिए ये भारत है, अब ये घूमते घूमते ये भारत में दिन हो गया, तो यहाँ पे ये अमेरिका है, यहाँ रात हो गया, ये सब रात हो गई, ठीक है। तो यानी जहाँ दिन है तो जो अदर पार्ट है वहां पे रात होगी, तो ये रोटेशन के कारण ही होता है। तो यू कैन से दैट रोटेशन काज डे एंड नाइट। सेकंड माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे दूसरा जो मूवमेंट है, वो है रिवोल्यूशन। क्या है? रिवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बताया कि जब अपने अक्ष पे घूमती है तो ये तो कहलाती है रोटेशन, और रोटेशन का डे एंड नाइट, एंड इट टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। लेकिन जब ये पृथ्वी आई मीन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पे तो घूम रही है, डबल वर्क कर रही है, अब ये जब सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमते घूमते ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। थ्रू द पिक्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ रिवोल्यूशन के बारे में। रिवोल्यूशन के बारे में इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज सन, राइट? ये पृथ्वी है, मैंने क्या कहा, एक तो अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो मान लो अपने एक्सिस पे घूमी तो ये दिन हो गया, ये रात हो गई, तो ये फिर मूवमेंट अक्ष पे जब घूम रही है तो दिन और रात हो रहा है, रोटेट हो रही है। अब रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, इट टेक 1 year and in 365 days to complete one revolution। एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में पृथ्वी को यानी सूर्य के चारों तरफ अगर एक बार परिक्रमा लगाती है तो उसको कम से कम 365 दिन यानी 1 साल लग जाता है, तब जाके वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन?
इसका इफेक्ट क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल हियर द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हियर. रिवॉल्यूशन का चेंज सीजन्स, right? In general, there are four. Generally, we can say that there are four seasons, and summer, winter, autumn, and spring. तो ये जो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग है, ये इस एक्सपीरियंस जो हम करते हैं ये किसी रिवॉल्यूशन के कारण ही होता है, यानी रोटेशन का डे एंड नाइट, तो रिवॉल्यूशन का चेंज सीजन. अब जैसे जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, जैसे उसकी दूरी, उसके सूर्य का प्रकाश जिस तरीके से पड़ता है, जितनी दूरी नजदीक होता है, जैसे जैसे वैसे वैसे सीजन में भी परिवर्तन आता रहता है. समर एक्सपीरियंस करते हैं जब एकदम नजदीक बिल्कुल हॉट हो जाता है, जब वही रोशनी कम पड़ती है तो विंटर एक्सपीरियंस करते हैं. उसी तरह मार्च महीने में हम लोग स्प्रिंग एक्सपीरियंस करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से दैट रिवॉल्यूशन का चेंज द सीजन, राइट? तो इट मींस the two movements of Earth's rotation and revolution. Rotation का day and night, it takes 24 hours to complete one rotation. I mean the Earth एक 24 घंटे लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, यानी उसका अगर एक मूवमेंट अगर जब अपने एक्सिस पे घूमती है स्वयं